Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Walaikum वालेकुम Assalam. अस्सलाम। Okay, so hello everyone. I am Alicia Ahmed Shamsi, GDSC lead of DHS Sufai University Karachi. So I hope you're all great and having a great week. So today we are hosting Google Solution Challenge info session in collaboration with GDSC Air Islamabad and GDSC NCBA E Lahore. And today with us we have Mughis Pervez. He's the ex-GDSC lead USA, and he's also one of the top 50 finalists of the Last Solution Challenge, and he's also won several MLH hackathons. So I will advise you all to make notes throughout the session and listen to all the details carefully. So I will give the session over to Mughis to start it. Mughis, are you there? Hello, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Am I audible now? Yes, but there's a little bit of distortion. Now, Yeah, it is good. No, it is so bad again. I hope now it is okay. Okay, I want to share my screen, please. Because right now I can see you are presenting the screen, right? Yeah, Oh, you can okay, share okay, it now. okay. My screen is visible, right? Yes, it is. Yes. Okay, okay, great. Okay, so let's start, I guess. So, Assalamu alaikum everyone. This is Mughis from University of South Asia, and I'm a CS student in sixth semester. And I'm a full stack developer, but my main expertise are in Flutter or in React. I'm also a MLH fellow, and for the next 3 months, I'm going to work with GitLab, Alhamdulillah, and I'm also a ex-GDSC lead, also a Social Challenge Global finalist, and I'm also a 2 times hackathon winner, Google Summit speaker. I also have worked with GDG Kolachi for almost, I guess, 1.5 years, or you could say 2 years. Uh, Recently, I have joined GDG Lahore as a co-manager, and I'm also a mentor at ShareBuilds. And ShareBuilds is one of the biggest gender-focused hackathon of India, where I got the opportunity to be mentor. And at the end, I just love hackathons because hackathons are the greatest way of learning. आई थिंक दुनिया की कोई भी क्लास में आप इतना अच्छे से नहीं सीख सकते नई टेक्नोलॉजी जितना आप हैकाथॉन में सीख सकते हो. At the end, if you want to know more about me, you can go to my website mugi.codes. So I guess this is it about me. So let's start our today's session, which is about Google Solution Challenge. Okay, so before we start, I just want to know how many of you already know about Google Solution Challenge. You can just raise your digital hand because I can see here digital hand, or you can also write comments. Okay, great. Okay, it is increasing. The hands are increasing. Okay, Adina Jवेदनप. Okay, don't worry. Okay, I guess कुछ ही लोगों को पता है. Okay, don't worry. So Google Social Challenge is a global contest held by Google Online, inviting all MC students to solve 17 sustainable development goals. And you might be wondering, why do we have just 17 sustainable development goals? Because all these goals are which are agreed upon by all 193 members of United Nations. That's why we have 17 sustainable development goals, and all these goals are somehow related to our planet, related to our human, somehow. And you might be wondering, why should we care about these 17 sustainable development goals, which we have: no poverty, zero hunger, good health,
अगर आप इनकी बात करें, नो पॉवर्टी और जीरो हंगर, अगर आप ज़्यादा दूर मत जाओ, अगर आप सिंध ही देख लो हमारा, जितने बुरे हालात हैं इस टाइम सिंध के, पॉवर्टी, जीरो हंगर, खाने कुछ नहीं है, खास तौर पे वहाँ के जो एजुकेशन है, जिसका ये कहा जाता है कि आज भी 100 साल पुरानी है, एंड इट्स ट्रू. Okay, so I was like, why should we care about these 76 sustainable development goals? So the answer is our planet Earth is in danger, and literally, right now our Earth has to face a lot of, you could say, uh, a lot of threats and like बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि इस हमारे प्लेनेट को इफेक्ट कर रही हैं, और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारा हो रहा है वो हो रहा है आई थिंक मरीन लाइफ में हमारी. सो देखते हैं उनको. ये मैंने फिल्टर आउट किए हैं जो तीन बिगेस्ट थ्रेट हैं जो कि हमारे प्लेनेट को कर रहे हैं. नंबर वन है जी क्लाइमेट चेंज. 5% of species are at risk of extinction from to sea warming, and right now the global warming of our planet is, I guess, 1.8 degrees centigrade, and we have to maintain it to 1.5 degrees centigrade. और अगर तो it hit the 2 degrees centigrade, then the 5% of species will disappear from the planet, and it is very alarming situation. And next we have is water scarcity. 20% of global groundwater wells could be at risk of running dry. और इवन के जो यूनाइटेड नेशन है वो तो अब ये भी कह रहा है कि जो नेक्स्ट हमारी जो वार होगी वो पानी की वजह से ही होगी, एंड इट्स ट्रू. एंड उसके बाद हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी. अ रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2022 states that 828 million people worldwide regularly go to bed hungry. Just think about it. 828 million, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर है ये. इसके अलावा इन अफ्रीका अलोन 98 मिलियन पीपल फेस एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी. अगर तो आप किसी को नहीं पता एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी क्या है, सो इट्स मीन डेथ और स्टार्वेशन. सो ये तो अभी सिर्फ तीन है जो कि मैंने फिल्टर आउट किए हैं, और भी बहुत से ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि हमारे प्लानिट इस टाइम फेस कर रहा है, एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. एंड दिस इज द एंड दीज आर द रीजंस we have to care about those 17 sustainable development goals. Next we have judging criteria. Okay, so this is all judging criteria. In 2023 they have made a little इसमें changes. लेकिन इतना मैंने देखे हैं न्यू जो चेंजेस आए हैं, इतना फर्क नहीं है उनमें. काफ़ी लोग जो मैंने पिछले भी सेशंस करवाए हैं उसमें काफ़ी कंफ्यूज थे बहुत से लोग, इसमें क्या फ़र्क है उसमें क्या फ़र्क है. उसमें बस उन्होंने एक दो लाइनें ज़्यादा कर दिया, घुमा फिरा के जो बातें यहाँ पे कही हैं बिल्कुल वही बात उन्होंने वहाँ पे की हैं. सिर्फ उन्होंने पॉइंट्स चेंज किए हैं. जो पिछले थे 2022 और 2019 से लेके, उसमें टोटल हमारे पास 100 पॉइंट्स थे, लेकिन जो अब जो 2023 के उसमें आई थिंक हमारे पास 50 पॉइंट्स हैं. 25 पॉइंट उसमें इम्पैक्ट के हैं और 25 पॉइंट्स उसमें टेक्नोलॉजी के हैं. तो लास्ट टाइम ये मैंने इसलिए आपको रखा है, लेकिन मैंने अपडेट नहीं की ये जो स्लाइड है, इसी वजह से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो इम्पैक्ट है लास्ट टाइम वो ये था कि 60 पॉइंट्स दे रहे थे ये लोग, और टेक्नोलॉजी को 40 पॉइंट्स दे रहे थे. तो इसमें एक और चीज़ बहुत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी लोग इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं करते, लाइक दे आर नॉट डेवलपर. तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपको डेवलपर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खास तौर पर सोशल चैलेंज में पार्टिसिपेट करना. लाइक जारी बात है आपको कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा जो कि अपने रिप्रेजेंट करना है, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है वो आती है इम्पैक्ट की. लेकिन अभी इसको आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना इस स्लाइड पे. राइट नाउ द थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन, लाइक मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बता देता हूँ. You have to make 2 minutes of video where you will be explain what you have made, how you have made. एक ये चीज़ है, और दूसरा ये कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी सोल्यूशन बना रहे हो, उसमें एक ना एक टेक्नोलॉजी आपने गूगल की लाजमी यूज़ करनी है. तो ये दो चीज़ें जो कि अभी फोकस करनी है आपने, लेकिन इस स्लाइड को आपने वह फोकस करना है जबकि हमारे पास आई थिंक 2 वीक्स पहले सबमिशन या 3 वीक्स पहले सबमिशन आपकी ओपन होगी, तो वह आपने इसको फोकस करना है. अभी फिलहाल आप अपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो सोल्यूशन बना रहे हो, उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए. Next, we have one more reason why should we care about those 17 sustainable development goals, or why should we participate in solution challenge. तो ये प्राइजेस हैं, ये भी पिछले साल के हैं. जो न्यू प्राइजेस हैं वो ये हैं. ओके, सो लास्ट टाइम ये था कि टॉप 50 टीम्स थी जो कि गूगल सेलेक्ट कर रहा था फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट दिस टाइम दे इंक्रीज द नंबर टू 100. तो इस दफ़ा 100 जो 100 टीम्स होंगी जो कि सिलेक्ट होंगी. अच्छा, अगर तो इफ़ यू मेड इन 100 तो आपको मिल रहा है टी शर्ट, सर्टिफिकेट, मेंटोरशिप फ्रॉम गूगल, और बस यही है कि लाइक एक मंथ आपको मिलेगा कि आप गूगल डेवलपर्स का काम कर सकते हो. गूगल डेवलपर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ आपके प्रोजेक्ट में काम करेंगे फॉर नेक्स्ट 30 days.
ये सबसे मजे की बात है टॉप 100 में आने की। लाइक प्राइस क्या है जिसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मजे की चीज है कि आप गूगलर्स जो हैं, गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके साथ काम करेंगे। नेक्स्ट, इफ यू मेड इन टॉप 10 फाइनलिस्ट, देन देयर इज आल्सो अ कैश प्राइज ऑफ $1000, एंड 4 लोगों की टीम होगी, तो जिसमें से पर स्टूडेंट को वो $1000 देंगे। इसके अलावा गूगल डेवलपर्स ब्लॉग में भी आपको फीचर किया जाएगा, लाइव आपका डेमो डे होगा यूट्यूब में। अगेन मेंटोरशिप आपको मिलेगी कि गूगलर्स आपके साथ काम कर रहे होंगे फॉर नेक्स्ट 30 days ऑन योर प्रोजेक्ट। उसके बाद इफ़ यू मेड इन टॉप 3 विनर्स, इसमें भी आपको $3000 देने हैं कैश प्राइस पर टीम, और ये $3000 पर मेंबर को दे रहे हैं। टोटल 4 की टीम होगी और जो पर पर्सन होगा उसको $3000 मिलेंगे। सेम गूगल डेवलपर्स ब्लॉग में आपको फीचर किया जाएगा और डेमो डे लाइव होगा। उसके अलावा मजीद आपको दोबारा से गूगल डेवलपर एक्सपर्ट जो होंगे वो काम करेंगे आपके साथ आपके प्रोजेक्ट में। तो आई थिंक दिस इज इनफ रीजन टू व्हाई शुड यू पार्टिसिपेट इन गूगल सोशल चैलेंज। आपको प्राइस भी मिल रहा है, इसके अलावा प्राइस तो है, लेकिन जो आपको फेम मिलेगा ना, आपको मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो प्राइस तो कुछ भी नहीं है, तो पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जो फेम मिलेगा वो आपका इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, जो आपका फेम होगा। तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करो आप लोग। तो ये तो हमारे प्राइजेस थे। ओके, नेक्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर सम की पॉइंट्स to win Google Social Challenge. So I hope you guys are excited about it. Number one is 90% success will depend on the idea, and it is 100% true कि आपका जो सक्सेस है सोशल चैलेंज की, उसकी जो 90% सक्सेस है वो आइडिया पे डिपेंड कर रही होगी। But many of us think that we are not good at ideas. We can never have great idea. We can never have creative idea. But here is the thing: anyone can have great idea, creative idea, and there are multiple ways to find the idea. You can just create you could say spreadsheets, और इसके अलावा वो जो forms होते हैं वो भी बना सकते हैं, and you can spread among around your friends, and you can ask them what kind of problems they face in their daily life. You could also go to your local shops, local vendors, local businesses, and you can also ask them what kind of problems they face in their daily life. इसके अलावा और भी काफ़ी तरीके हैं आइडियाज़ को फाइंड करने के लिए, बट कहीं ना कहीं जाके all these techniques are quite hectic and quite time consuming. There is some kind of distortion. Can you please check who is hosting this? Okay, okay. तो लाइक जितने भी टेक्निक्स हैं, लाइक उसमें लाइक क्वाइट क्वाइट हैक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग। तो मैं सिंपल एक आपको टेक्निक बताऊंगा किस तरीके से आपने आइडिया फाइंड करना है, किस तरीके से आपने जो ग्रेट प्रॉब्लम है वो फाइंड करनी है। बहुत सिंपल होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके यूनाइटेड नेशन साउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यू कुड आल्सो कॉल देम कैटेगरीज। तो इनकी जो कैटेगरीज हैं इन पे आपने जाना है। सबसे पहले आपने कैटेगरी चूज करनी है कि आपने सोल्व क्या करना चाह रहे हो आप। मे बी यू वांट टू डू समथिंग अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, and if you have choose the category of quality education, maybe you are just thinking why shouldn't we build something around for students or for teachers to bridge the gap between them. but but it is not enough. like ऐसा नहीं है कि आपने एक कैटेगरी चूज की और डायरेक्ट आप कोडिंग स्टार्ट कर दो और जो आपका सोल्यूशन है, जो आपका आइडिया है, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। तो द थिंग यू दैट यू हैव टू डू इट, let me just open the official website of sustainable development goals. I also wanted to write the mistake we did. ये थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, बट जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। सबसे पहले आपने कैटेगरी चूज की। कैटेगरी चूज करने के बाद इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, आपने इस पे जाना है इनकी वेबसाइट पे। अच्छा, ये वेबसाइट है, यहाँ पे भी इन्होंने दिए हुए हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, सबसे बेस्ट वे क्या कैटेगरी फाइंड करने का, कि अगर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे जीतने के, तो आपने जो इनके टारगेट्स हैं ना वो ये देखने हैं। लाइक अगर आप गोल नंबर 1 को देखो, इसके टारगेट्स कितने हैं, 7 है, राइट। जीरो हंगर के भी 8 हैं, इसके 13 है। आपने ये देखना सबसे ज़्यादा टारगेट्स किसके हैं। हमारे पास 17 सिस्टम डेवलपमेंट गोल्स हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा होंगे इसके। कौन सा गोल है ये, हाँ 17 गोल है, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। सबसे ज़्यादा टारगेट सिस्टम इसके हैं। तो इसका मतलब अब इसको पकड़ो, इस कैटेगरी को पकड़ो, क्योंकि इस पर काम नहीं होगा, इसके टारगेट्स भी बहुत कम है। एक और चीज़ जो कि मुझे रिसेंटली पता चली है,
एक तरफ आपने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली, ये समझ लो कि एक किस्म का हैक है आइडिया फाइंड करने का। एक तरफ आपने वेबसाइट ओपन कर ली, राइट, जहाँ पे आपके पास आ गए गोल्स, आ गए टारगेट्स, आपने देखे सबसे ज़्यादा टारगेट्स इसके हैं। एक और तरीका हमारे पास एक बेटर आइडिया फाइंड करने का। अच्छा, यहाँ पे भी सेम हमारे पास उन्होंने 17 सिस्टम डेवलपमेंट गोल दिए हुए हैं। यहाँ पे आपने इनके एग्जाम्पल्स प्रोजेक्ट देखने हैं। अच्छा, जो गोल नंबर 1 है, इसके 3 एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, अब देखोगे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी इतना काम नहीं हुआ। इसके थोड़ा सा और नीचे जाओगे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसके एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो गूगल ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसीडर सबमिटिंग टू दिस कैटेगरी एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो आपके चांसेस और बढ़ गए जीतने के। तो आप और नीचे जाओगे, आपको और नजर आ जाएगा, इस पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, इसमें भी एक प्रोजेक्ट है। और जो आखिरी 4-5, हाँ 4-5 गोल्स हैं, इस पे बिल्कुल भी प्रोजेक्ट्स नहीं है। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर इफ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन गूगल सोशल चैलेंज, तो ये जो आखिरी 4-5 गोल्स है ना, इनमें से किसी को पकड़ लो आप, आपके 50% चांसेस जीतने के यहीं से बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, एक तो आपने ये देख लिया, और यहाँ से गोल्स का टारगेट देख लिया। तो ये बहुत बेस्ट वे है कि किस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए, किस पे काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़, जो कि आई वांट टू अवॉइड द मिस्टेक वी डिड लास्ट टाइम। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने सिर्फ कैटेगरी चूज की थी। कैटेगरी चूज करने के बाद सिंपल हम कोडिंग, वी जंप इनटू कोडिंग, हमने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो जो हमारी मिस्टेक थी, वो हमें डिस्क्वालीफाई भी करवा सकती थी। वो किस तरीके से, कि अब समझो यहाँ से मेरा गुड हेल्थ और वेल बीइंग है, इसमें गया मैं मोर इन्फॉर्मेशन में, अच्छा मोर इन्फॉर्मेशन में हम चल गए, तो यहाँ से आपने डायरेक्ट टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स में जाना आपने। कि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने हमें प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ऑलरेडी आइडियाज दिए हुए हैं, आपको आइडिया ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट गूगल सोशल चैलेंज। क्योंकि बहुत से लीड्स इसी पे कंफ्यूज हो रहे थे कि यार हम आइडिया क्या लें, हम किस चीज़ पे वर्क करें। तो अगर आप टारगेट नंबर 3.1 में आओ, बाय 2030 reduce the global maternal mortality ratio to less than 70%, 100,000 live births। तो ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम आ गई है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे जाओ, एड्स, मलेरिया, और भी काफ़ी निगलेक्टेड जो डिजीजेज हैं हमारे, आप उनमें से किसी में काम कर सकते हो। तो ये एक तरीका है बेस्ट आइडिया फाइंड करने का, बेस्ट प्रॉब्लम फाइंड करने का। तो अब आपका वो तो खत्म हो गया ना इशू के, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई गेस हर किस इसके टारगेट्स हैं, या 14 है इसके। तो बहुत सिंपल है ये। और इसके एक और चीज़, इसके 10 पॉइंट्स भी हैं, कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका आपने जो भी बिल्ड किया है, और अगर तो वो इन टारगेट्स और इंडिकेटर्स के अंदर नहीं आता, तो आपके 10 पॉइंट्स कट जाएंगे। तो लास्ट टाइम हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी। वो तो अल्लाह की तरफ से बस कह लो कोई एक ऐसा मिराकल हो गया था, कि जब मुझे आखिरी 2 हफ्ते पहले पता चला, तो मैंने टारगेट्स और इंडिकेटर्स देखे, तो उनमें से कहीं ना कहीं मेरा जो भी मैंने बनाया था, जो हमारा सोल्यूशन था, वो टारगेट्स के अंदर आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो लास्ट टाइम तो मैं इस तरीके से बच गया था, लेकिन आई डोंट वांट यू टू अवॉइड द सेम मिस्टेक वी डिड। तो ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स थी। सिंपल, आप कैटेगरी में गए, कैटेगरी में जाने के बाद टारगेट्स और इंडिकेटर्स में गए, यहाँ से प्रॉब्लम फाइंड किया आपने, टारगेट्स देख लिए, उनके इंडिकेटर्स देख लिए। जैसे ही आपने ये पकड़ ली चीज़ें यहाँ से, उसके बाद आगे आपकी सिर्फ रिसर्च होगी आपकी। तो ये था बहुत सिंपल वे, हाउ यू कैन फाइंड अ ग्रेट प्रॉब्लम, और यू कुड से हाउ यू फाइंड अ ग्रेट आइडिया। सो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, आई वांट यू टू मीट द टीम, जो कि लास्ट टीम मेरे साथ थी, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, एंड इट वाजंट पॉसिबल विदाउट देम। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। और साथ ही मैं आपको थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि लास्ट टाइम हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था। ओके, लास्ट टाइम हमने डिसलेक्सिया पे काम किया था। If you're wondering what is dyslexia, dyslexia is a learning disability which includes problem in reading or writing, and it has nothing to do with the intelligence. तो मोस्टली हमारे यहाँ पे यही सोचा जाता है कि शायद बच्चा नालायक है, पता नहीं क्यों नहीं वो पढ़ रहा, लेकिन इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इंटेलिजेंस। ये एक सिंपल एक डिसेबिलिटी है जो कि क्यूरेबल है। तो ये भी एक कुछ वजह है कि वाई शुड वी केयर अबाउट डिसलेक्सिया। इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम हमारे पास काफ़ी आइडियाज़ थे, लेकिन मैंने यही क्यों चूज़ किए। तो ये वजह, इन पाकिस्तान द प्रेवलेंस रेट ऑफ dyslexia among children is 15 to 20%, which means that about 12 million children are in need of help.
ये वो नंबर्स थे 12 मिलियन, जिसकी वजह से मैंने डिसलेक्सिया पे लास्ट टाइम काम किया। तो अगर आप भी कोई भी अपना प्रॉब्लम या आइडिया जिसके ऊपर काम कर रहे हो चूज करने लगे होगे, तो प्लीज उसके जो नंबर्स है ना, जो कि लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, वो भी लाजमी देखना आप। सेम अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो 700 मिलियन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स आर एट रिस्क ऑफ लाइफ लॉन्ग इलिटरेसी एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो ये एक वजह थी बहुत बड़ी कि लास्ट टाइम मैंने बिना कोई सोचे डिसलेक्सिया पकड़ा, उस पर काम शुरू कर दिया मैंने। One more, many schools and districts still refuse to even use the word dyslexia. Why does it matter? पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बिल्कुल सेम ऐसी है कि हमारे स्कूल जितने भी हैं, ख़ास तौर पे जो लोकल स्कूल्स हैं हमारे, बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, उनको तो पता भी नहीं कि डिसलेक्सिया है क्या। कुछ स्कूल्स हैं जैसे बिकन हाउस हो गया, जहाँ पे इस चीज़ का थोड़ी केयर की जाती है, लेकिन इवन के हमारे पेरेंट्स को नहीं पता डिसलेक्सिया क्या है। तो इसी पे सेम एक मूवी भी है तारे ज़मीन पर, आई होप के, आई थिंक आप सब ने देखी होनी है, आई एम श्योर। तो सेम वो भी डिसलेक्सिया के ऊपर ही बनी हुई है मूवी। तो अगर तो आप लोग देखे तो फिर तो आपको समझ आ चुके होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So here is a tuition video of our project from last year. I want you to watch it. Let me just play it. I guess it will take time to run. Yeah, it's fine. Guys, वॉइस आ रही है वीडियो की? I just got the message के can you please look into नहीं it? आ रही आवाज। तो यार मुझे बताओ तो सही, यहाँ वी पे आर कौन नॉट था हो? गेटिंग साउंड। एटलीस्ट मुझे तो बताओ, मुझे तो ये था कि शायद आप लोगों को वॉइस आ रही है। मुगीज़, यू विल हैव टू शेयर द टैब। फिर आवाज़ आएगी। स्क्रीन शेयर में एक टैब का ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, फिर उसमें आ जाएगी। नहीं, आई थिंक वो मैं ना चला रहा था इसके अंदर, स्लाइड्स के अंदर, डेट्स वाई। यहाँ तो एक मिनट, यहाँ तो मैं फिर लिंक ही आपको शेयर कर देता हूँ डायरेक्टली। अब बताओ तो सही, मुझे तो ये था कि वॉइस आ रही है। Okay guys, I'm just sharing the link of my video. You can go and watch it. Okay, so let's continue. Okay, तो ये हमारा ऐप था सिंपल। चलो वॉइस स्टडी कम से कम वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी ऑलमोस्ट सबने। तो ये हमने ऐप बनाया था लास्ट टाइम डिसलेक्सिया पे, जिसमें काफ़ी फीचर्स हमने ऐड किए थे। अच्छा, बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि हाउ वी गॉट द आइडिया। लास्ट टाइम इतना नहीं पता था हमें कैटेगरी का, टारगेट्स का, इंडिकेटर्स का, बिल्कुल नहीं मुझे आइडिया था इस चीज़ का। तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि जो मैंने, हाँ इतना मुझे पता था कि कैटेगरी चूज़ करनी है, इतना तो मुझे पता था। सिंपल एक कैटेगरी चूज़ की मैंने हेल्थ की, लेकिन जो प्रॉब्लम मैं सोल्व करना चाह रहा था दैट वाज अबाउट मेंटल हेल्थ। At that time I really wanted to do something about depression.
तो सिंपल मैं अपना आइडिया जो हमारी साइकोलॉजी की मैम थी उनके पास लेके गया। उनको मैंने अपना आइडिया बताया, उनको सारा सोल्यूशन चैलेंज एक्सप्लेन किया मैंने कि ये सोल्यूशन चैलेंज है और हम ये प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो मेरा आइडिया था वो ये था कि we should build something about AI or maybe something like robot who will just talk back to the human। लेकिन मैम ने कहा ये आइडिया पहले ही जापान में बन चुका हुआ है, तो फ्लॉप गया था आइडिया। तो वह मैंने उनसे ये बात हुई थी, तो मैंने उनको ये कहा था कि जस्ट नीड 5 बेस्ट साइकोलॉजी स्टूडेंट। तो उन्होंने मुझे जो 5 बेस्ट साइकोलॉजी स्टूडेंट थे वो दे दिए थे। तो हमने एक एग्रीमेंट रखा उनके साथ एंड वी अगेन एक्सप्लेन देम व्हाट इज सोल्यूशन चैलेंज और व्हाई शुड दे जॉइन अस। तो सारी बात है उसमें उनका भी बेनिफिट था। तो सेम उनको मैंने 24 आवर्स दिए। 24 आवर्स दिए, उनको कहा कि लाइक यू हैव 24 आवर्स एंड यू हैव टू कम बैक विद द आइडिया। तो आफ्टर 24 आवर्स वो जो 5 स्टूडेंट्स थे साइकोलॉजिस्ट के, वो सब के सब एक आइडिया लेके आए और उन सब ने मुझे अपना आइडिया बताया। तो उनमें से एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे लाइक डिसलेक्सिया के बारे में बताया, लेकिन वह भी मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जब उसने मुझे जो नंबर्स थे डिसलेक्सिया के, 12 मिलियन जो चिल्ड्रंस है पाकिस्तान में अफेक्टेड है और ऑल ओवर द वर्ल्ड 700 मिलियन अफेक्टेड है, तो सिर्फ वो नंबर्स थे जो कि उस टाइम पे इफेक्ट किए थे। दैट्स व्हाई आई लास्ट ईयर आई वर्कड ऑन डिसलेक्सिया। So that's how I got my idea. But this year, you know how you can get your ideas. You just simply have to go to the official website of Sustainable Development Goals, and you have to go the targets or indicators. और वहाँ पे जाकर simple you have to just choose a problem and start working on it. बहुत simple है इस दफा। तो next I guess okay, next ये वो email थी जो हमें आई थी। like थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम प्रॉब्लम्स में ही हमें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लग गए थे। जो हमने प्रॉब्लम्स कह लो कि जो एरर्स हमें आ रहे थे, जो बग्स हमें आ रहे थे, उनको सॉल्व करने में हमें 3 दिन लग गए थे लिटरली। और लास्ट टाइम ना तो हमें से कोई डेवलपर था हमारे बीच, बस वी वर जस्ट पैशनेट अबाउट इट। तो ऑन 10th में ही रात के 2 बजे हम काम कर रहे थे स्टिल, तो हमें ये ईमेल आया एंड इट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। just skip this slides, you don't need to know about this। okay, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट स्लाइड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपने अपना प्रॉब्लम चूज कर लिया, अपना आइडिया चूज कर लिया, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर आइडिया। इतने डाउट्स आ रहे होंगे, इतने डिजाइर्स आ रहे होंगे, आपकी अपनी टीम डाउट्स में होगी, पता नहीं हम क्यों इस पे काम कर रहे हैं, विल इट बी वर्थ इट और नॉट। आपका अपना आप आपको कह रहा होगा पता नहीं यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं कि इट विल बी वर्थ इट और नॉट। ठीक है, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर आइडिया एट एनी कॉस्ट। बहुत से लोग आएंगे आपको कहेंगे इस पे मत काम करो, इवन कि आपकी टीम छोड़ जाएगी दरमियान में, वो भी आपको कह रही होगी कि यार नहीं हमें वी शुड फाइंड सम अदर आइडिया। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर आइडिया एट एनी कॉस्ट नो मैटर व्हाट। एक दफ़ा आपने आइडिया लाइक चूज कर लिया, अपनी प्रॉब्लम चूज कर लिया, तो बस लग जाओ उस पर बस। Next, build a great team, and of course, it will be not possible without a great team. And we are not a one-man army, or you are not a one-man army. तो टीम तो बहुत लाजमी होगी, क्योंकि और इवन कि जब एक दफ़ा आपकी टीम बन जाएंगी उसके बाद जो टीम्स की जो स्ट्रेंथ है, स्किल्स, वो भी सिर्फ मैंने एक लीड्स को पता होगा। इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि जो आपकी कोर टीम होगी उनको सिर्फ अपने लीड की सुननी होगी। काफ़ी टफ डिसीजंस भी आपको लेने होंगे, खास तौर पे जबकि 4 लोगों को अपने रेप्रेजेंट, क्योंकि 4 लोग सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे ना अपने प्रोजेक्ट को, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए कि किन 4 लोगों को मैं आगे करूँ। वहाँ पे आपकी टीम के कुछ कुछ टीम मेंबर्स होंगे वो भी नाराज हो जाएंगे। तो यू हैव टू मेक सम डिफिकल्ट डिसीजंस आल्सो। एट द एंड फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, नो मैटर व्हाट यू हैव टू फिनिश इट, बिकॉज वाकई बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। इवन के आई थिंक अब सिर्फ 2 मंथ रह गए हैं, लेकिन बट स्टिल 10 दिन काम करोगे आप, 20 दिन काम करोगे और डिमोटिवेट हो जाओगे, आपकी टीम डिमोटिवेट हो जाएगी। चलो टीम को तो संभालने के लिए उसका लीड होगा ना, लेकिन लीड को संभालने के लिए सिर्फ अल्लाह ही होगा बस, बिलीव मी। तो यू हैव टू फिनिश योर प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी होंगी। लास्ट टाइम लिटरली मेरे को थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ मैं, कि मैं ना तो मैं फ्लटर डेवलपर था और ना तो मेरी टीम में कोई फ्लटर डेवलपर था। और मैंने अपनी टीम को बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ था कि मुझे मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है। मैं बस उनको यही बताया हुआ था कि you don't have to worry about anything,
कोई आपको इशू आ रहा है, आप मुझे बताओ। उनको मैंने कोर्सेज बाय करके दिए थे यूडेमी से, तो वो सिंपल फ्लटर कोर्सेज कर रहे थे और साथ साथ मैं भी कर रहा था, लेकिन उनको नहीं पता था कि मुझे नहीं आता कुछ। उनके लिए बस यही था कि मैं ही हूँ। और लिटरली अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत रखी थी लास्ट टाइम। और जो प्रॉब्लम मेरे पास लेके आ रहे थे, मैं उनको किसी ना किसी तरीके से सोल्व कर रहा। मैं इतनी अल्लाह ताला ने इज्जत रखी थी। तो काफ़ी अच्छी जर्नी लिया लास्ट टाइम। और इवन मैं ये भी कहूँगा कि लाइक मेरी पूरी यूनिट का जो फेज गुजरा, उसमें सबसे अच्छा फेज ये मेरा सोल्यूशन चल के गुजरा। लाइक 3 to 4 मंथ का फेज था, एंड वी हैव रन, या 3 to 4 मंथ हमने इस पे काम किया अपने प्रोजेक्ट में। और इतनी मेमोरीज बनी है, हर दूसरे दिन हमारा मीट हो रहा था। लाइक इट वाज रियली अमेजिंग टाइम, मेमोरेबल टाइम। तो आप सब भी लास्ट में इसमें पार्टिसिपेट करो। तो ये चीज़ें थी जो कि पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपसे शेयर करने थे। So I guess this is it by my side. At the end, I will just take some questions. If you have any doubts or questions, you can just ask me. Okay, Islam Khan has raised a hand. I think. Assalamu alaikum, sir. Well, Islam. This is Aslam Khan from GDSC Air. Mm-hmm. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने कहा था कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में, तो हमारे पास जो डेडलाइंस आ रही है फर्स्ट को, अगर हम इस दफ़ा गूगल सोल्यूशन चैलेंज की डेडलाइन की बात करें तो वो है जो रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है वो 17 मार्च तक है। तो उससे पहले हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, और अगर पूरा नहीं हो तो किस हद तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, और हमारा जो टोटल कंप्लीट प्रोजेक्ट है 100% वो कब तक हमें उनको प्रोवाइड करना होगा, ये चीज़ थोड़ा गाइड करते बस। ओके, द फर्स्ट थिंग, रजिस्ट्रेशन को लेकर बिल्कुल आपने लाइक फोकस करना ही नहीं है आपने। 31 मार्च लास्ट डेट होगी, उससे पहले कुछ भी नहीं है। हाँ, वो रजिस्टर आपने करना होगा, उससे पहले इनिशियल जिसे हम कहते हैं फॉर्म्स, वो बस आपने फिल करने होंगे। बाकी जो सबमिशंस हैं वो 31 मार्च तक हैं। उससे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना इसको लेके। और प्रोजेक्ट आपने इतना कर लेना कि आप शो करवा सको, एंड यू डोंट हैव टू अपलोड ऑन द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। बस आपने 2 मिनट की वीडियो बनानी है जिसमें यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट यू हैव मेड, हाउ यू हैव बिल्ड इट। बस सिंपल लाइक जिस तरह लेको, आप कोई फिक्र ना करो। आप 31 मार्च तक आपके पास टाइम है, और आई थिंक इट इज इनफ। आई थिंक अब 2 मंथ है आपके पास, तो इट इज इनफ। और 31 मार्च लास्ट है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 31 मार्च थी और हमने जो फॉर्म था वो फिल ही नहीं किया हुआ था, तो आखिरी घंटा रह गया तो हमारी वीडियो नहीं बनी हुई थी। तो आखिरी घंटे में हमने बिल्कुल गंदी सी वीडियो बना के भेज दी, और इतना हम डिसअपॉइंट हुए कि हमने 3 महीने से काम कर रहे थे, लो हम तो डिस्क्वालीफाई हैं। और अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत रखी कि 2-3 घंटे बाद पता चला उन्होंने 5 डेज एक्सटेंड कर दिए। तो फिर हमने दोबारा से, हमें टाइम मिला 5 डेज का, दोबारा से हमने वीडियो बनाई। तो इस दफ़ा आप लोग कोशिश करना कि एक हफ्ता पहले ही अपना, जो आपका ग्राफिक डिजाइनर है जो कि वीडियो बनाएगा, वीडियो एडिटर है, तो वो पहले ही काम स्टार्ट कर दे। तो दिस इज, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। अगर और किसी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, or you can just write in the comment. Okay, can we target multiple system development goals at the same time? Yes, you can. Even के जो आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होगे, उसमें भी अगर तो आपने हेल्थ रखा है और हेल्थ के अंदर ही आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो कि एजुकेशन को भी सॉल्व कर रहा है, या कोई और टारगेट है उनको सॉल्व कर रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली राइट अबाउट इट, यू कैन डू इट। Okay, some solutions are related to the problems in current era and not in system development goal directly. Can we have that idea in it? Yes, you can. लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है। जो टारगेट्स और इंडिकेटर्स है ना, उनके अंदर वो जो प्रॉब्लम आपकी किसी ना किसी तरीके से आनी चाहिए। अगर तो हम डिसेबिलिटी की बात करें, जैसे डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी है, राइट। लास्ट टाइम उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ था कि आपने डिसलेक्सिया को सोल्व करना है, उन्होंने बस कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी हुई थी कि यू आर सोल्विंग सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। तो हमने बस उसको, उस टारगेट को पकड़ लिया।
तो सेम आपके जो सिटी में यहाँ पे लोकल में कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, अगर तो वो टारगेट्स और इंडिकेटर्स के अंदर आ रही है तो गो फॉर इट, और अमूमन आ रही होती है ऑलमोस्ट सभी। Do we have to target the global problems or the local level problems? It doesn't matter as long as you're solving some kind of problem. It doesn't matter, बस you have to solve some kind of problem जिससे हमारा planet को कोई ना कोई benefit हो रहा है या फिर लोगों को benefit हो रहा है। Project source code should be shared to them or not? हाँ, वो गिटहब में ऑब्वियसली आपको करने पड़ेंगे वो तो, इवन कि आप छोटा सा हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें भी आपको अपने जो सोर्स कोड है वो शेयर करना पड़ता है। कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? यार मिस्टेक तो अब डायरेक्ट तो मुझे नहीं पता कि आप क्या मिस्टेक करोगे। सिंपल बस यही कहूँगा कि जस्ट पार्टिसिपेट इन इट। अंधा यकीन रखो अल्लाह ताला पर, अपने आप पे यकीन रखो खास तौर पर। मिस्टेक तो देखो होते थे, इवन कि हमारे साथ हमारे हमसे भी लास्ट में मिस्टेक हुई थी, लेकिन वी वर रियली पैशनेट अबाउट इट। अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत देखी थी, तो इस तरीके से ऐसे ही हम टॉप 50 में आए थे। तो मिस्टेक तो आप लोगों से भी होगी ऑब्वियसली, नो वन इज परफेक्ट, बट कुछ चीज़ें हैं जिसका मैंने बता दिया आपको। 2 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। जो मेन टेक्नोलॉजी है सोल्यूशन में आपने एक ना एक गूगल की यूज़ करनी है। इसके अलावा आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए और 4 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, एक चीज़ है जो कि अभी लाइक एक और चीज़ आपको बताऊंगा। जब हम टॉप 10 में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद एक आपका लाइव डेमो डे जो हो रहा है ना, उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यू हैव टू मेक श्योर कि जो 4 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। वो किस्म का इंटरव्यू टाइप होगा कि आपने क्यों बनाया, यही टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ की, इसका फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के। तो ये भी ज़रा इस चीज़ का भी ध्यान रखना। Your team is doing a big project, जैसे पहले क्या था, what do you suggest on managing the time and the workload? Just go with the flow. कोई टाइम कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, कोई वर्क फ्लो नहीं होता। आई थिंक यू जस्ट हैव एक्चुअली देखा जाए तो वन वे और अनदर वे वी आर ऑल जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ये तो बस हमारे माइंड गेम बन चुकी है ना कि हम बिजी हैं या किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो लास्ट टाइम इवन के हाँ, ये मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया था। इवन कि मैं यूनिवर्सिटी क्लासेस भी चल रही थी साथ साथ, मैंने काफ़ी क्लासेस बंक की थी और ली नहीं थी, और फिर एक जो फाइनल का पेपर था मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी छोड़ दिया था। तो सेक्रीफाइस तो आपको करने पड़ेंगे छोटे मोटे। बाकी जस्ट पार्टिसिपेट। वो कहते हैं ना लाइक जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद सिंपल सिंगल स्टेप्स। तो एक स्टेप लो, आगे खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी, I don't know about your team, but there are times when your team is doing a big project and they get stuck on something and as a result get sad, depressed. What was your way or would be your way to motivate your team again? देखो, आपकी टीम तो जगह हर 2 दिन पर डाउन पड़ रही होगी, हर 2 दिन पर डाउन पड़ रही है। ये अब लीड पे डिपेंड करता है किस तरीके से वो मोटिवेट कर रहा है अपनी टीम को। जैसे कि मैंने बताया ना लास्ट टाइम, मैंने तो अपनी टीम के पास नेगेटिविटी गुजरने नहीं दी थी। उनको इतना मैंने पॉजिटिव रखा हुआ था कि उनको पता ही नहीं था कि फेलियर क्या चीज़ है, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं था। बस ये था कि मेरे पर प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं वो, और अल्लाह ताला ने मेरी इतनी इज्जत रखी है, मैं 2-2 3-3 दिन लगा के किसी ना किसी तरीके से वो जो बग्स आया, वो जो प्रॉब्लम आई, उनको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो अगेन, लीड को मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं होगा, टीम को मोटिवेट करने के लिए उसका हमेशा उसका लीड मौजूद होगा। तो लीड के लिए काफ़ी मुश्किल सफ़र होने वाला है। तो आई गेस दिस इज़ वाई वी आर लीड, कि अल्लाह ताला हर किसी को थोड़ी लीड बनाता है। वी आर चूजन स्पेशली, ठीक है, और हमारे पास एक स्पेशल पावर्स आते हैं जब हम लीड्स बन जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द लीड कि वो किस तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हर 2 दिन बाद वो डिमोटिवेट हो रहे होंगे, हर 2 दिन बाद। ये बस दिन में रख लो, आपने मोटिवेट करना उनको कि ओके। सो आई गेस दिस इज इट। अगर तो किसी का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो, और यहाँ तो रैप अप करें इसको। I think we will wrap this session up. So if you guys still have any question, you can reach out to Mickey's on his LinkedIn.
And it was a great session, Mugiz. Thank you very much for joining in, and everybody who joined in. So your respective leads will share the feedback form with you so you can fill it out. Thank you. Thank you again. Allah Hafiz, everyone.